Hi, good evening. I am Trilochan Sahu, Department Mathematics from Prayas Higher Secondary School. Welcome you all to the Concept Plus online class. आमे जो तीनटा प्रीवियस क्लास थिला तादरे पढ़िथिले इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला ए विषय आमे पढ़िथिले। वर्तमान तमे जहाँ स्कूल रे पढ़िथिलो तार सब पाठ सरीगला। वर्तमान तमे जहाँ +2 स्टैंडर्ड रे पढ़िया को जाउछ तापरे आज क्लासटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट क्लास। आज जो तुम बुझीगल ठीक से तापरे तुमको आउ किसी प्रॉब्लम हेनी। सो आज आम पढ़ा स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आ भितर तुमको पढ़ार अच्छी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन्स, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स, condition of collinearity of 3 points, then solve examples. आमे डिस्कस करिबा वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एन एंगल थीटा मेड बाय ए लाइन L with the positive x axis in anti-clockwise direction is called angle of inclination of a line. From the diagram, let us L is a line which makes angle theta with a positive direction, means anti-clockwise direction of x-axis. Then this theta is known as angle of inclination. Then we have to discuss about slope or gradient of a line. Slope. What is slope? If theta be the angle of inclination of a line, then tangent of angle theta is known as slope or gradient of the line. अगर x एक्सिस के साथ कोई लाइन थीटा एंगल करता है, then tan theta is known as slope or gradient of the line and it is denoted by m. Hence m equal to tan theta. There are two diagrams. In the first diagram, so angle of inclination is 45 degree. From there, m equal to tan 45, that is equal to 1. In the second diagram, theta equal to 135 degree. So m equal to tan 135, that is -1. Hence slope ये होता है, अगर कोई लाइन थीटा एंगल करता है x एक्सिस के संग, tan थीटा होता है स्लोप. Here theta is 45 degree and 135 degree. Hence tan 45 is 1 and tan 135 is -1. So there is a note. So slope of x axis, that is tan 0 degree equal to 0, and slope of y axis, that is tan 90 degree, which is not defined, or 1 by 0. तो x एक्सिस का स्लोप होता है 0 and y एक्सिस का स्लोप होता है 1 by 0 or not defined. Then slope of a line segment joining 2 points. Let us a x1 y1 and b x2 y2 are 2 points and theta be the angle of inclination of AB, so that tan theta equal to m. There are 2 points a x1 y1 and b x2 y2 in the first quadrant. Then draw AM perpendicular to OX, BN perpendicular to also OX, and AC perpendicular to BN. Extend BA which intersect x axis at P. APM angle equal to theta, which is BAC angle. तो hence हमारा APM एंगल जो होता है BAC एंगल वही होता है. तो then in the triangle ABC triangle BAC एंगल थीटा हो गया. अभी from the diagram OM equal to x1, ON equal to x2, AM equal to y1 and BN equal to y2. तो MN क्या होगा? MN होगा ON minus OM, that is x2 minus x1. Similarly BC होगा BN minus CN, that is y2 minus y1. From the diagram angle theta, tan theta, एंगल थीटा मतलब इसको अगर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा हो गया BC by AC. BC होता है y2 minus y1 and AC होता है x2 minus x1. Hence tan थीटा हो गया y2 minus y1 by x2 minus x1, because tan थीटा होता है P by B. P होता है BC, B होता है AC.
थीटा का ऑपोजिट जो होता है दैट इज पी होता है और बेस एसी होता है, इसलिए तो m हो गया tan थीटा दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और दैट इज होता है स्लोप। tan थीटा होता है स्लोप, हेंस स्लोप हो गया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, हेंस m हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। सपोज L1 एक ठो लाइन है, L2 अनदर लाइन है, L1 मेक्स थीटा 1 विथ एक्स एक्सिस एंड L2 मेक्स थीटा 2 विथ एक्स एक्सिस एंड L1 L2 के बीच में एंगल हो गया थीटा। फ्रॉम द डायग्राम द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, हेंस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा, वहां से हम लोग निकाल सकते थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो थीटा 2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। देन दोनों तरफ टैन अगर ले लेंगे, टैन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टैन थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल देने से हो जाएगा टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1 बाय 1 प्लस टैन थीटा 2 इंटू टैन थीटा 1। सो टैन थीटा हो गया, टैन थीटा 2 का वैल्यू होता है m2, टैन थीटा 1 का वैल्यू होता है m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। इसको मॉड इसलिए दिए, अगर हम पहले टैन थीटा 2 लेंगे तो पहले m2 आएगा, अगर टैन थीटा 1 लेंगे m1 आएगा, इसलिए उसको मॉड ले लेते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। सो थीटा हो गया टैन इनवर्स, टैन अगर उस तरफ चले जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 का मॉड। मॉड मतलब प्लस माइनस दोनों लेंगे, अगर प्लस लेंगे तो टैन थीटा अगर प्लस हुआ तो एक्यूट एंगल बन जाएगा, टैन थीटा अगर माइनस हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। देन कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, पैरेललिज्म मतलब अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होगा, हमारा स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम द डायग्राम L1 and L2 are two lines which are parallel. Parallel means theta 1 equal to theta 2, तो tan theta 1 बन जाएगा tan theta 2। तो L1 का स्लोप होता है m1 सपोज, L2 का स्लोप होता है m2 सपोज। तो यहाँ पे tan theta 1 इक्वल टू tan theta 2 मतलब m1 इक्वल टू m2 हो गया। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये हो गया हमारा पैरेललिज्म का प्रॉपर्टी। देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम द डायग्राम L1 and L2 are two lines which are perpendicular to each other. Let L1 makes theta 1 with x axis and L2 makes theta 2 with x axis, and दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा L1 L2 के बीच वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। फ्रॉम द डायग्राम थीटा 2 हो गया एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब थीटा 2 हो गया 90 प्लस थीटा 1, हेंस टैन थीटा 2 होगा टैन 90 प्लस थीटा 1। तो टैन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ये एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। सो टैन थीटा 2 बन जाएगा माइनस कॉट थीटा 1। तो टैन थीटा 1 इक्वल टू कॉट हो गया 1 बाई टैन, हेंस माइनस 1 बाई टैन थीटा 1, हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से टैन थीटा 1 इंटू टैन थीटा 2 इक्वल टू माइनस 1। टैन थीटा 1 हो गया m1, टैन थीटा 2 हो गया m2, हेंस m1 इंटू m2 हो गया माइनस 1। तो two lines, if two lines are perpendicular to each other then their product of the slope equal to minus 1। अगर एक का स्लोप होता है 2, दूसरा का स्लोप हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। अगर एक का स्लोप हो गया माइनस 3, दूसरा का स्लोप हो जाएगा 1 बाई 3, हेंस प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू माइनस 1। देन कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट हम लोग को कोलिनियर होता है जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़े थे, अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन AB प्लस AC, AB प्लस BC इक्वल टू AC होता था। अभी ये स्लोप का प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो कैसा होगा। तो फ्रॉम द डायग्राम इफ ABC आर 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर देन AB का स्लोप इक्वल टू BC का स्लोप होता है। अगर AB का स्लोप इक्वल टू BC का स्लोप हो जाएगा देन ABC आर कोलिनियर बन जाएगा। देन सम सॉल्व एग्जाम्पल आर देयर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। हम लोग जानते हैं जब इंक्लिनेशन दिया रहता है व्हाट इज स्लोप, स्लोप होता है टैन थीटा।
तो फास्ट अगर थीटा 60 डिग्री होता है, व्हाट इज टैन थीटा? टैन 60 का वैल्यू हो गया √3, सो स्लोप बन जाएगा √3। सिमिलरली अगर थीटा 150 डिग्री होता है, व्हाट इज स्लोप? देन m इक्वल टू टैन 150, टैन 150 का वैल्यू होता है -1/√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ए हो गया एक पॉइंट 1 2, बी हो गया अनदर पॉइंट 3, -4। अगर दो पॉइंट दिया होता है, व्हाट इज द स्लोप? y2 minus y1 by x2 minus x1. Here x1 y1 is 1 2 and x2 y2 is 3, -4. Hence slope बन जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1, that means -4 -2 by 3 -1, that is -6 by 2, that is -3. Slope हो गया -3. Then another example, example 3, find the inclination of a line joining the points 3, -1 and 4, -2. अगर दो पॉइंट दिया होगा then what is the inclination? इंक्लिनेशन क्या होता है? थीटा। इंक्लिनेशन क्या होता है? थीटा। बट टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। तो पहले टैन थीटा निकाल देंगे। टैन थीटा होता है y2 minus y1 by x2 minus x1, that means -2 minus of -1 by 4 minus 3, that is -2 plus 1 by 1, which is equal to -1. तो टैन थीटा इक्वल टू -1 हो गया। -1 टैन का कौन सा वैल्यू होता है? 135 के डिग्री होता है, इसलिए टैन थीटा इक्वल टू टैन 135, वहां से मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 135। तो हेंस इंक्लिनेशन हो गया 135। देन एग्जाम्पल 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स 0 0 2 3 एंड द पॉइंट्स 2 -2 3 5। दो लाइन सेगमेंट दिया है। ए बी एक ठो लाइन सेगमेंट है, सी डी एक ठो लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, सी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -2, डी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 5। सपोज ए बी का स्लोप होता है m1, सी डी का स्लोप होता है m2। पहले m1 निकाल देंगे और थीटा हो गया ए बी और सी डी का बीच वाला एंगल। पहले m1 निकाल देंगे। m1 हो गया 3 -0 by 2 -0, that is equal to 3/2। m2 निकाल देंगे, that is हो गया 5 minus of -2 by 3 -2, that is equal to 7/1 equal to 7। m1 मिल गया, m2 मिल गया। According to the formula, tan theta equal to modulus of m2 minus m1 by 1 plus m2 into m1। So tan theta equal to m2 के जगह 7, m1 के जगह 3/2 by 1 plus 7 into 3/2। उसको सॉल्व करने से आ जाएगा 11/23। सो tan थीटा अगर 11/23 होता है, थीटा हो गया tan इनवर्स 11/23। देन एग्जाम्पल 5, if the angle between two lines is π/4 and the slope of one line is 1/2, then find the slope of the other line। π/4 क्या होता है? ये रेडियन में होता है। हमारा तीन चीज मेजरमेंट का तीन चीज पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में। एक तो डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, ग्रेड मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन के जगह 180 डाल देंगे। π/4 मीन्स 180/4 हो गया 45 डिग्री। तो मतलब 45 डिग्री हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप हो गया हाफ, दूसरा लाइन का स्लोप सपोज m लेंगे, उसका बीच वाला एंगल लेंगे 45 डिग्री। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? वही tan थीटा इक्वल टू m2 minus m1 by 1 plus m2 into m1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसमें हम लोग डालेंगे m1 इक्वल टू हाफ है, m2 इक्वल टू m है, थीटा के जगह 45 डिग्री। ये तीनों चीज अगर डाल देंगे इक्वेशन में, tan π/4 और 45 इक्वल टू हाफ माइनस m by 1 प्लस हाफ इंटू m का मॉड। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए tan 45 लेफ्ट साइड में 1 हो गया। 1 इक्वल टू हाफ माइनस m by 1 प्लस m/2 का मॉड। अगर मॉड हटाएंगे तो इधर लेफ्ट साइड में प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस 1 इक्वल टू हाफ माइनस m by 1 प्लस m/2। एक ठो प्लस लेके करेंगे, एक ठो माइनस लेके करेंगे। अगर प्लस लिए 1 इक्वल टू उधर 2 एलसीएम चला गया, 1 माइनस 2m/2 नीचे आ जाएगा 2 प्लस m/2। सिमिलरली -1 इक्वल टू
1 माइनस 2m/2 बाय नीचे आ जाएगा 2 प्लस m/2। उसको सॉल्व कर देंगे, m का दो वैल्यू आएगा, एक तो हो गया -1/3, एक तो हो गया 3। हेंस दूसरा लाइन का स्लोप हो जाएगा 3 और -1/3। देन अनदर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through 3y and 2 7 is parallel to the line through -1 4 and 0 6। तो मतलब दो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल होता है। सपोज हम A ले लिए 3y, B ले लिए 2 7, which is parallel to the line C हो गया -1 4 और D हो गया 0 6। ये दोनों लाइन पैरेलल अगर होगा देन हमारा क्या होगा कंडीशन देखिए। अगर दो लाइन पैरेलल होगा देन हमारा स्लोप क्या होता है, दो लाइन अगर पैरेलल होता है देन स्लोप इक्वल होता है। तो हम डायग्राम बनाए हैं, ए बी एक ठो लाइन बना है 3, बी हो गया 2, 7, सी डी एक ठो अनदर लाइन बना है -1 4 0 6, दोनों लाइन पैरेलल। दोनों लाइन का हम स्लोप निकाल देंगे। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, दैट इज m1, वो हो गया y-7/3 - 2। स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे जो कि हो गया m2, 6 - 4/0 -1, दैट इज हो गया 2/1। According to formula m1 equal to m2, y-7/3 - 2 equal to 2/1। उसको सॉल्व करने से y का वैल्यू 9 आ गया। वैसे और कोई एग्जाम्पल दिया होगा, अगर दो लाइन पैरेलल होता है, कोई भी अननोन होता है, दोनों का स्लोप निकाल के दोनों को इक्वेट कर देने से पैरेलल m1 इक्वल टू m1 करने से आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, इफ 3 पॉइंट्स h0 a b and 0k lie in a line so that a by h plus b by k equal to 1। 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर रहेगा, वन लाइन, अगर एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट रहता है तो उन लोग का स्लोप इक्वल हो जाता है। 3 पॉइंट गोटे लाइन ऊपर रहिले सेमानकर स्लोप इक्वल हे जिवो। स्लोप इक्वल मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हे जिवो। A point is h0, B point is AB, C point 0k। So slope of AB equal to slope of BC according to the formula। तो AB का स्लोप क्या होगा, B - 0 by A - h इक्वल टू BC का स्लोप क्या होगा, K - B by 0 - A। तो B by A - h इक्वल टू K - B by -A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो एठी, -AB इक्वल टू A - h इंटू K - B। सॉल्व कर ले, -AB इक्वल टू AK - AB - HK प्लस BH। -AB कैंसिल हो गया। देन HK को गोटे पट को नहीं आस, आउ AK प्लस BH को गोटे पट रख। AK प्लस BH इक्वल टू HK, सबुथरे जदि आमे HK डिवाइड कर दबा, AK बाय HK प्लस BH बाय HK इक्वल टू 1। H कैंसिल हो गला, K कैंसिल हो गला, A बाय H प्लस B बाय K इक्वल टू 1 प्रूव हो गला। सो आज क्लास तुमको केमती लागिबो, कौन लागिथिबो, तो आकु सब भल भाव बुझिबो। भल भाव बुझिकी तुमर जदि किछि डाउट रहिबो, आपर हमर डाउट क्लियरिंग क्लास हबो। डाउट क्लियरिंग क्लास रे पचारले मु तुमको बुझे देबी। हाउ गुड बाय।